So hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. I'm doing super duper good, and now we are ahead with the chapters. Chapter number 2, Modern Historians of the Ancient India. Now, if you haven't watched my first lecture of this the first lecture of the chapter 1, you could go and watch it in our channel Lim Saraswati. You can also add my handle, which is at the rate Ananya 3019. My handle is not so much complicated or sophisticated. You could easily search for it and get the channel. Okay, and if you are liking the if you are getting knowledge from the video, please like, share, and do subscribe to the channel. It will also motivate me to make something course like this, as we are gonna complete it till the new year. And in new year you will celebrate the happiness of your Asian Indian history. And after the completion of this one, we will practice some question 2. I have completed this Asian Indian history 2 months earlier, and now I'm writing this answer writing for it. Okay, and later on when I will be teach it completely with that, we'll move towards the answer writing. Okay, sorry, let's get started. There were lot of book here, lot of writer name. You could make a good enough timeline. As let us make the timeline. East India Company in Bihar 1765 got the revenue over Bengal and Bihar fall under the rule of East India. Rule means it under the revenue system. That's mean if the something having revenue of some place, mainly that is administration or according to them only. क्योंकि revenue के लिए उनके सारे policies, उनके सारे what we call that action related to that help and affect the area there. Okay, तो देखो मनुस्मृति, द लॉ ऑफ मनु 1767 में कौन सा therefore law of manu which was considered authorized was translated into a code of gento. Okay, wait, okay, wait, I'm gonna fix that. Put it here then. um, you can see it, right? Yes. Pandit to administrate that power associate. Okay. Sorry, because I am having cough. तो देखो देखो अब क्या हुआ, कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना है तो यू हैव टू गो फॉर अ कोर्ट टू. तो कोर्ट में असिस्ट करने के लिए हिंदू के सिविल लॉ के लिए पंडित से एंड मलवी से टू एडमिनिस्टर दैट ऑफ मुस्लिम्स. ओके. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता 1784 ऑफ एशियाटिक सोसाइटी हुआ. विलियम जोन्स का एक what we call as civil servant थे ईस्ट इंडिया कंपनी के. what is civil servant? तो it's a person under the ministers who work for the development of the district. Okay. He was first to suggest Sanskrit, Latin and Greek belong to same family of language. Wait. He also translated Abhijana Sakuntalam into English in 1789. भगवत गीता जो कि एक मोस्ट पॉपुलर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है, उन्हें भी ट्रांसलेट किया गया था बाय विल्किंस इन 1785. जो मार्क करिए ज़रूरी नहीं है आप भी मार्क करो. मार्क करने से बेटर आप एक टाइमलाइन बना सकते हो. वो कैसे बना सकते हो मैं बताती हूँ. बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी 1804 में सेटअप हुई थी. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पे सेट हुई थी? इन इंडिया, इन लंदन हुई थी 1823 में. देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तुमको देखनी पड़ेगी. अब मैं बता देती हूँ टाइमलाइन कैसे बनाना है तुम लोग को. यहाँ से ओके, एक लाइन टानो, यहाँ पे ईयर लिखो जो ईयर हुआ है, फिर यहाँ पे लिख दो काम क्या हुआ है. यहाँ पे एक लाइन टानो, अब ऊपर ईयर लिखो और यहाँ पे क्या हुआ वो लिखो. जिससे क्या होगा ना,
एक वे में तुमको दिखेगा और एक वे में लगेगा। और मल्टी पेन यूज़ करो। मल्टी कलर मीन्स आई मीन टू जस्ट से कि तुम लोग सिर्फ वाइट एंड ब्लैक को यूज़ किया करो, जिससे ज़रा सा तो अच्छा लगेगा और तुमको पढ़ने में भी अच्छा होगा। बिकॉज मैंने गलती कर दी, मैंने जो टाइमलाइन बनाया ना एशियन इंडियन हिस्ट्री का, वो मैंने ओनली एक सेम कलर पेन से लिखा है, जिसको अब पढ़ने में मुझे ज़रा सा बोरिंग होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो वो भी कन्वे कर रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं फैक्स म्यूलर के बारे में। ये बहुत अच्छे शख्स हैं। इन्होंने क्या, बेस्ड इन इंग्लैंड, इन्होंने अपना जो पढ़ाई लिखाई या स्टडी की है वो इंग्लैंड में की है। 1857 को जो रिवॉल्ट हुआ था, ब्रिटिश को ऐसा रियलाइज़ करवा दिया कि अगर हम लोग इन लोग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो आप लोग को पता ही होगा। द क्रांति ऑफ 1857 को क्या बोलते, सॉरी वेट, caused Britain to realize that it is badly needed to have deeper knowledge of the manner and social system of an alien people. Okay, remember one thing. This alien people stand for Indians, because for them, for Europeans, for Britain, it was us who were alien people. And for us, it was Britishers who were alien people. Okay, but in this book, they always talk about alien people towards the India. Okay? ओके, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई थी, जो लोग क्या करते थे, कन्वर्ट क्या करते थे हिंदूज को, हिंदू के रिलेशन को। फिर एडिटरशिप, जैसे कि मार्क्स मिल रहे थे, उन्होंने 50 वॉल्यूम्स ऑफ सेवरल पार्ट वाइज स्टोरी एज सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज, मतलब एक सीरीज ही उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें जितने भी सारे सैक्रेड्स बुक हैं हमारे, उनको पूरा कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया टू न्यू. In the introduction to these volumes, the book based on them, Max Miller, Western scholar, made certain generalization about the nature of Indian society. Okay. अब जनरलाइजेशन क्या होता है, जब ये पढ़ वढ़ के उनको लगा कि इंडिया का जो सोसाइटी है वो ऐसा है। कैसे है? सेंस ऑफ हिस्ट्री की कोई सेंस ही नहीं है पहले तो। एलिमेंट ऑफ टाइम भी कुछ क्रोनोलॉजी नहीं है, इन्होंने बताया ये हमें, ये बताएंगे हमें क्रोनोलॉजी नहीं है। हाँ, if you take an example, there was a book fully from महाभारत to गुप्ता एज, एक अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्रोनोलॉजी है। ओके, despotic rule and also native were involved in the problem of spiritualism. Spiritualism is not a problem. The problem is that what we call that superstition. Okay, और कोई भी नो कंसर्न था अबाउट प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड। ओ माय गॉड, अगर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड या वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता ना, तो रोमन ट्रेड नहीं हो रहा होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड विद चोलाज नहीं हो रहा था रोमन ट्रेड का, कोई पिलग्रिम्स नहीं आते, फाइन नहीं आते हमारे ये में, इंडिका नहीं लिखी जाती, मेगास्थनीज नहीं आते, फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इन्होंने ये भी कहा कि नाइदर एक सेंस ऑफ नेशनहुड है नॉर एनी फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट भी नहीं है और नेशनहुड भी नहीं है, कि कोई नेशन नहीं होता, एक किंगडम ये होता है कि हाँ, नेशनहुड नहीं था लेकिन किंगडमहुड था, किंगडम के प्रति लोग लॉयल थे। इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मराठास, मौर्य, गुप्तास, हर्षास, ओके एक्सेट्रा, चोलास, पंड्यास, चेरास, दे आर लॉयल टू। अगर उनके पर्सन या कोई नेशनहुड या किंगडमहुड नहीं होता तो उनका किंगडम भी नहीं होता। ब्रो प्लीज़, तो पता नहीं, हम थोड़ा डिबेट में चले गए, लेकिन तुम लोग को हर एस्पेक्ट बताना ज़रूरी है। एज अ टीचर मैं तुमको हर एस्पेक्ट से गो थ्रू करवा दूँ, एंड नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू टेक दैट। एंड इसमें ऑथर का भी कोई गलती नहीं है। डोंट ब्लेम द ऑथर दैट हाँ ऑथर ही गलत कर रहे हैं। नो, ऑथर ने वो बताया जो कि सच है। ऑथर का भी वही काम है। ऑथर का जस्ट काम है कि तुम्हारे ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्वे कर देना, अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे लेते हो। ओके, और वैसे भी हम लोग ये पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, डोंट गेट डू टी। ओके जी, ये पढ़ लिया हमने। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि विनस ऑर्थर स्मिथ थे 1904 में जिन्होंने लिखा था, इसमें बेसिकली जनरलाइजेशन मोस्ट की गई हैं। ठीक है,
Smith's approach to history was pro-imperialist. As a loyal member of Indian civil service, he emphasized the role of foreigner in Asian India. अब इन्होंने क्या, इन लोगों का क्या माना था कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन, फिर अलेक्जेंडर इन्वेजन अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट, अब इनके अकॉर्डिंग क्या था ना, जो फॉरेन पावर है वही बेस्ट है, लाइक दैट, जो कि इंडल्ज नहीं, जैसे कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन, वो एक फॉरेन पावर आए थे इंडिया में जो कि रूल कर रहे थे, ओके, इन दैट नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट। तो आई वॉज देयर कि वो लोग उस टाइम पे वहाँ पे रूल कर रहे थे। मोस्ट ऑफ ऑल इन लोग का जो बुक होता था, 1/3 ऑफ हिज बुक वॉज डिपिक्टेड टू उतना ही, उसी को सिर्फ बताया जाता था अलेक्जेंडर वाले। और कुछ इंडियंस उन लोग को सपोर्ट भी किया करते थे इस मैटर पे, क्योंकि उनको फुल हिस्ट्री पता नहीं थी ना, क्या थे मौर्य, क्या थे गुप्ताज, राइट। सॉरी, मैं बार बार मौर्य एंड गुप्ता ही बोल रही हूँ, नो, नीचे भी कुछ बहुत सारे किंगडम्स है, जैसे कि चौला, चालुक्य, मराठाज, देन देयर वाज Cheras, Pandyas, which was supposed and written that it was the first empire ruled by a woman for a long period. It was started by a woman. Okay, so let's move. और ये सब वो लोग क्यों क्या करते थे, सिर्फ जो कोलोनिज्म, कोलोनियल, हाँ मैं भी ना, कोलोनिज्म, वो कॉलोनियल रूल, ये एक ऐसा रूल है जिसमें फॉरेन पावर, कॉलोनिज्म क्या होता है ना, जब कॉलोनी सुना है, हम इंडिया जो थी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जिसमें से वो लोग रॉ प्रोडक्ट लेते थे और मैन्युफैक्चर करके फिर रॉ प्रोडक्ट को यहीं पे बेचा करते थे। अब इसी को वो लोग जब फर्दर इस पर एडमिशन करने लगे तो इसे कॉलोनी या कॉलोनिज्म या कॉलोनियल रूल भी कहने लग गया, ओके। However, generalization made by colonists will be a larger, either false or grossly exaggerated, but served as good propaganda material for the perpetuation of despotic British power rule. Okay, ये मैंने पहले ही बता दिया. Okay, let's move into the next topic, which is इस पैराग्राफ पे वही बताया गया है कि जैसे मैंने सबसे पहले डील किया आप लोग को, उसको ले लेके इस पैराग्राफ में उसी से डील किया गया है। नेशनलिस्ट अप्रोच एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इंडियन स्कॉलर को, पर्टिकुलरली दोस्त जो कि रिसीव किए थे वेस्टर्न एजुकेशन को। अब अगर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया है तो उसमें उन्होंने भी कुछ उसमें पढ़ा है, उनका थॉट ऑफ प्रोसेस भी बदला है, प्लस उनको अपना ये वाला इंडियन कल्चर को भी लेकर चलना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब देखो अब क्या हो रहा था ना, जैसे जैसे ब्रिटेन ग्रो कर रहा था, अब वैसे वैसे इंडिया जो था वो ये हो रहा था, व्हाट वी कॉल दैट, ग्रो का स्टंट हो रहा था, गॉड, फ्यूडल सोसाइटी बन रही थी और लोग की कैपिटलिस्ट। फ्यूडल मीन्स होते हैं जहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, और कैपिटलिस्ट मीन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर जो थे उन्होंने एक मिशन लिया कि अब हम लोग को इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म मतलब अब अपने अंदर इंडियन सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना है, जो कि एकदम अच्छा वाला बदलाव, ओके। In doing so, most historians were guided by nationalist idea of Hindu revisionism, but there was no dearth of scholars who adopted a rationalist and objective approach. To the second category belong Rajendra Lal Mitra, who published some Vedic texts and wrote a book entitled Indo-Aryans. A great lover of Asian heritage, he took a rational view of Asian India and produced a forceful tract to that in Asian people time people ate beef, others saw the proof. ओके, मैं बताती हूँ। जो राजेंद्र लाल मित्रा थे एक रैशनलिस्ट व्यूअर थे। अब आप लोग रैशनलिस्ट का अगर व्यू निकालोगे तो ये ऐसा व्यू होता है कि जो अच्छा है वो ले लो, जो ख़राब है उसे फेंक दो, लाइक दैट व्यू। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो बहुत एक अच्छे लवर थे ऑफ एशियन हेरिटेज। इन्होंने एक बुक लिखी, कही इट वाज इंडो आर्यंस, और इन्होंने एक फोर्सफुल ट्रैक दिया जिसमें पीपल एट बीफ। अब ये इन लोग को माहिर से बात है, इन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा होगा,
महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भांडकर एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये एक टू ग्रेट डेडिकेटेड स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपने वराइट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्ट किया है सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरजे भंडाकर कंस्ट्रक्टेड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सत्तावाहन ऑफ डेक्कन। अब डेक्कन का किसने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया? इट वाज बाय आरजे भंडाकर। Vaishnavism and other sect. What is Vaishnavism? In this, it is an ism in which we study about Vishnu, in which we are just what we bhakt of Vishnu. We worship the various form of Vishnu. Okay, Shivism, Shaktism. ये एक बहुत ही सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, ओके, विडो का रीमैरिज, फिर जो कास्ट सिस्टम जो इविल प्रैक्टिस है, चाइल्ड मैरिज है, इन्हें हटाने का प्रयास किया। बट जाहिर सी बात है ना, जो हमारा इंडियन सोसाइटी, वेट